Today we are going to talk about protein. That what is protein? These are the objective. Discuss the general structure of amino acid. Discuss the following essential amino acid and non-essential amino acid. What's the difference between polar and non-polar amino acids? Deuterion. Describe the classification of protein according to solubility, composition, function, and shape. Explain the significance of protein denaturation. Discuss the structure of dipeptide and tripeptide. And describe the primary, secondary, tertiary, quaternary structure of protein. What is protein? Protein is the polymer of amino acid. The basic unit of protein is amino acid, and each amino acid is composed of three things. In this diagram you can see that from these three things one amino acid has been is composed of. Every amino acid is composed of these three things: carboxyl group, alkyl group, and H2N. This is known as amino group. Okay, this is the composition of amino acid molecule. Now we discussed that what's the difference between essential amino acid and non-essential amino acid. Essential mean लाजमी तौर पे लेना होता है. Non-essential mean हमें लाजमी तौर पे नहीं लेना होता है. Why we call it essential amino acid? This amino acid which cannot be synthesized by the body and must be supplied by computer. ये जो है this amino acid is very important to have in our diet, because this type of amino acid which cannot be synthesized by your body. सही है, आपकी जिस्म इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हमें लाजमी तौर पे अपने डाइट में लेना पड़ता है. Therefore we call it essential amino acid. इसके लिए हमारे लिए फार्मूला है. कैसे? MET वाइल्डफाइल, MATT, MET म्यूथिनीन, A for arginine, T for threonine, T for tryptophan, wild, V for valine, I for isoleucine, wild, L for leucine, file, P for phenylalanine, H for histidine और L for lysine. तो हमारे लिए this is the important formula you should to remember the essential amino acid. Non-essential amino acid are those type of amino acid which can be synthesized by the body. So as a compensatory mechanism our body can compensate when we do not have this type of amino acid. वो कौन कौन से? tryptophan, serine and glycine. हमारे पास in the next step we are discussing here what is polar amino acid and non-polar amino acid. Polar amino acid are those type of amino acid in which R group of amino acid is polar, such as OH, SH, NH2 or amino or carboxyl group. Then that amino acid is known as polar amino acid which have electronegativity. इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो क्या होता है? पोलर एमाइनो एसिड. नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे. नॉन पोलर एमाइनो एसिड के इफ द आर ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड इज नॉन पोलर लाइक हाइड्रोकार्बन देन दैट एमाइनो एसिड इज नोन एज. इस एमाइनो एसिड अगर आर ग्रुप क्या हो? नॉन पोलर हो, इसलिए इस किस्म के एमाइनो एसिड को फिर हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर एमाइनो एसिड कहते हैं. दिस इज द डायग्रामिक स्ट्रक्चर. जो नॉन पोलर होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं. हाइड्रोफोबिक मीन वाटर को अलाउ नहीं करते हैं, दे आर वाटर हेटर कहते हैं. जो पोलर होते हैं दे आर हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लवर होते हैं और अनचार्ज होते हैं. कैसे करते हैं? देखो, नॉन पोलर जैसे हमारे पास क्या है? एलेलीन. एलेलीन का वो क्या फार्मूला है? दिस इज COO. ये क्या है हमारे पास? व्हाट इज दिस? दिस इज H3N. H3N इज एमाइनो ग्रुप. ये हमारे पास क्या है? COOH. This is the carboxyl group and this is what? This is the alkyl group. हमने ये कहा था कि every amino acid is having what? Every amino acid में क्या होता है? तीन चीज़ें होती है. carboxyl group, amino group and the third one is alkyl group. CH3 is the alkyl group. इसी तरह हमारे पास ये भी है. COO is the carboxyl group, H3N is the amino group and the CH3 this is what? This is the alkyl group. तो हमारे पास जैसे एलेलीन है, फिर वेलाइन है, वेलिन जो हमने पढ़ा था मेल्टिंग वो है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, फिनाइल एलेलीन है, ट्रिप्टोफैन है, म्यूथिनीन है, प्रोलीन है, एस्पेरेंट एसिड है और ग्लूटामीन है. ये हमारे पास क्या है? नॉन पोलर में आ जाते हैं. फिर हमने क्या पढ़ा? पोलर में क्या है? ग्लाइसिन है,
सीरीन है, थ्रोनिन है, और क्या है, क्रेस्टीन है, थायरोसिन है। थायरोसिन कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे थायराइड ग्लैंड में थायरोसिन पाए जाते हैं, जो क्या कहते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। और क्या है हमारे पास, एस्पेरेजिन है, ग्लूटामीन है, लाइसिन है, अर्गनिन है और हिस्टिडीन। हिस्टिडीन क्या है, एसेंशियल एमाइनो एसिड है या नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड है? हमने पढ़ा था मेट वाइल फाइल में, एसेंशियल एमाइनो एसिड। और हिस्टिडीन कहाँ पर पाया जाता है? हिस्टिडीन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी। हमारे हेमोग्लोबिन मालिक्यूल पाए जाते हैं, हमारे हेमोग्लोबिन में हिस्टिडीन पाया जाता है, और क्रोमोसोम में भी हिस्टिडीन पाए जाते हैं, सॉरी उसमें हिस्टोन पाया जाता है। हिस्टिडीन मालिक्यूल कहाँ पाया जाता है? हमारे एचबी हेमोग्लोबिन मालिक्यूल में पाए जाते हैं। फिर हमारे पास क्या है, दिस इज द, नाउ वी गो टू द, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। सही है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर प्रोटीन। सम प्रोटीन आर वर्किंग लाइक अ स्ट्रक्चर, जो जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर बनते हैं, वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल कोलेजिन एंड केराटिन। केराटिन प्रोटीन वेयर इज इट्स स्प्रेड, दिस इज द नेल स्ट्रक्चर जो आपका बनता है, वो किसकी वजह से बनते हैं? केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन से बनते हैं आपके हियर इज आल्सो, it's also the structure ना, here is also the structure, your here is also containing keratin protein, इसमें भी केराटिन प्रोटीन होती है। फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कोलाजिन जो है वो क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेल। सही है, कनेक्टिव टिश्यू किससे बनते हैं? हमारे कोलाजिन प्रोटीन से बनते हैं। एंड द थर्ड सेकंड वन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज व्हाट? इट वर्क, सम प्रोटीन इज वर्किंग लाइक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। Actin and mycin is present in the muscle. The muscle contractility is occurred due to this type of protein. When there is deficiency, when there is deficiency of actin and mycin, the contractility of this type of muscle will be not happen. तो contractility हमारे muscular contractility किसकी वजह से होती है? Due to the actin mycin. सही है, ये क्या है? मसल कंट्रैक्शन करा देते हैं। अगर ये मसल में नहीं होंगे या इसकी कमी हो जाती है तो मसल कंट्रैक्टिलिटी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। What's the third one step? The third important function of protein is it work like a storage. और भी बहुत हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास फेरेटिन प्रोटीन है। तो फेरेटिन प्रोटीन कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे पास फेरस, आयरन में पाए जाते हैं। आयरन हमारे पास कहाँ है? फेरेटिन प्रोटीन जो है हमारे पास हेमोग्लोबिन मालिक्यूल है, वहाँ पर पाए जाते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? स्टोरेज, एज अ स्टोरेज काम करते हैं। एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज व्हाट? इट वर्क लाइक अ ट्रांसपोर्ट, एज अ ट्रांसपोर्टेशन भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन, व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन तो क्या होगा? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिस्टर्ब। जब आपके जिस्म में व्हेन यू आर एनेमिक एंड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, सो व्हाट विल बी हैपन? द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल बी गोइंग डाउन। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड के जो कैरिंग कैपेसिटी वो भी कम हो जाती है। तो हमारे पास कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होती है। व्हेन दिस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, व्हेन दिस हेमोग्लोबिन protein is deficit in your body, so what will be happen? The nutrient carrying capacity and oxygen carrying capacity will be disturbed, so your body function will be not well. सही है, आपका फंक्शन नहीं करेगा। इसी तरह सीरम ग्लोबुलिन और दूसरा क्या है? अल्बुमिन एज अ ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, जो क्या कहते हैं? फैटी एसिड के ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को विद इन द सेल की तरफ क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब आपकी जिस्म में अल्बुमिन की कमी हो जाए या लीवर फेलियर की वजह से तो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर जो है इंट्रासेलुलर की तरफ नहीं चलता है, जो न्यूट्रिएंट्स या कुछ खास में फ्लूइड वगैरह, तो फिर क्या होता है? द पेशेंट बिकम एडेमेटस, एडीमा, फिटिंग एडीमा हो जाता है। सही है। इसी तरह हमारे पास हार्मोन है, हार्मोन लाइक इंसुलिन भी है। इसी तरह हमारे पास हार्मोन में क्या है? हमने क्या पढ़ा इसमें? हमारे पास हार्मोन भी है, इंसुलिन है और ग्रोथ हार्मोन भी है, जो क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है? आपको डेवलप कर, आपको बढ़ा देता है। इसी तरह इंसुलिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, सो व्हाट विल बी हैपन? तो क्या होगा? ब्लड लेवल पे ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? फर्दर क्या हो जाता है? फर्दर कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस होंगे और आपका जिस्म जो है सर्वाइवल नहीं करेगा। इसीलिए इंसुलिन का काम क्या होता है?
इट्स द कैरियर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल टुवर्ड्स टू द सेल। जब सेल को मिलेगा ग्लूकोज, देन एनर्जी विल बी फॉर्म आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्रेब्स साइकिल की तरफ जाएगा, और देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, फिर एटीपीज प्रोडक्शन होगी, तो आपका जिस्म वेल डेवलप होगा और हीट प्रोडक्शन भी होगी। जब इंसुलिन की कमी होगी, व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, सो दीज ऑल टाइप ऑफ फंक्शन विच आई डिस्कस यू, दीज ऑल फंक्शन विल बी डिस्टर्ब। सही है, डिस्टर्ब हो जाएंगे। Some protein work like a enzyme. Multiple type of enzyme है. For example, here is pepsin. What's the function of pepsin protein? It's work like digestion of protein. Okay. The next one, the protein is also work like a protection काम कर देते हैं, जैसे गामा ग्लोबुलिन। It's mean that हम ये भी कह सकते हैं it's provide you immunity. Gamma globulin it also work like a antibodies when there is फॉर एग्जाम्पल IgM IgG क्या कर लेते हैं, जो क्या कर लेते हैं मुख्तलिफ, जैसे टाइफाइड फीवर में वो बढ़ जाता है, इसका काम क्या होता है टू कंट्रोल ओवर द सल्मोनेला टाइफाइड। सही है, तो IG जो गामा ग्लोबुलिन जो है वो क्या कर लेते हैं, गामा ग्लोबुलिन क्या कर ले आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करती हैं, जो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से क्या कर लेते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं। दूसरा है पेब्रेनोजिन, तो चांसेस ऑफ ए बी मीन एंटीबॉडीज फॉर्मेशन कराते हैं। पेब्रोनोजिन इज वर्क लाइक फॉर क्लोटिंग, जब आपका क्लोटिंग फैक्टर सही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इज ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है या डिसप्रोटेक्टिव है, डिसप्रोटेक्टिव। तो हमारे पास पेब्रोनोजिन मॉलिक्यूल इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच वर्क लाइक फॉर क्लोटिंग, व्हेन देयर इज इंजरी, व्हेन समवन हार्म यू, so automatic mechanism will be activated, one molecule, one protein which is responsible for clotting your blood, which is known as pebrinogen. Okay, the next one, its work some protein just like a venom, जो हमारे पास क्या होते हैं स्नेक में भी होते हैं, जो क्या कर लेते हैं वेनम जो है दिस इज टाइप ऑफ प्रोटीन, जो क्या कर लेते हैं इट्स जस्ट लाइक अ पॉइजन होती है हमारे पास। सम प्रोटीन क्या कर लेते हैं एज अ, हमने ये कहा था कि सम प्रोटीन क्या है हार्मोन के तौर पे एज अ रेगुलेटर है, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म को क्या कर लेते हैं रेगुलराइज रखता है। जब आपके जिस्म में ब्लड लेवल बढ़ रहा हो तो इंसुलिन हार्मोन क्या कर लेते हैं काम कर लेते हैं। जब आपके जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर रहा हो तो क्या कौन एक्टिवेट होता है, ग्लूकागोन और कोर्टिसोल हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, जो हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इसी तरह सम प्रोटीन एज वर्क लाइक आ रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं विच फैसिलिटेट समथिंग फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर सेल की तरफ लेके जाता है। जैसे इंटीग्रल प्रोटीन है, मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर लेके जाता है और बाहर लेके आता है। तो एज अ रिसेप्टर और एज अ मेडिकेशन के तौर पे भी काम करते हैं। जब हम मेडिसिन कहाँ पे काम करते हैं, एज अ रिसेप्टर पे काम कर लेते हैं ना। जैसे हमारा सर दर्द यहाँ हो तो हम बोलते हैं सर दर्द यहाँ, हम यहाँ कहते हैं, तो क्या करते हैं मुख्तलिफ मेडिकेशन जो है उन रिसेप्टर पे काम करते हैं। तो कुछ प्रोटीन जो है हमारे पास एज अ रिसेप्टर के तौर पे काम कर लेते हैं। कुछ प्रोटीन जो है हमारे पास जेनेटिक्स में भी काम कर, जैसे हमारे पास हिस्टोन है, हिस्टोन कहाँ होते हैं हमारे क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। और इसी तरह कुछ जो है हमारे पास एज अ ट्रांसपोर्टर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे वो क्या कौन है, एल्बुमिन वगैरह है। कुछ जो है हमारे पास एज अ डिफेंस मैकेनिज्म या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे काम करते, जो हमने क्या किस पे डिस्कस किया, जैसे IgM है और IgG इम्यूनोग्लोबुलिन है। सही है। बेस्ड ऑन केमिकल हमारे पास फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं based on this is the other classification of protein based on what, हम किस बेस पे बात करेंगे, बेस्ड ऑन केमिकल एंड सोलिबिलिटी के तौर पे हम बात करते तो ये है हमारे पास बेस्ड ऑन केमिकल एंड सोलिबिलिटी के तौर पे हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। हमारे पास कौन कौन से प्रोटीन है, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। वो कौन कौन से प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन, conjugated protein and derived protein. What are simple protein? Simple protein are those type of protein which are जिसमें सिर्फ एमाइनो एसिड पाए जाएं, इसको हम क्या कहते हैं सिंपल प्रोटीन कहते हैं। और which containing
दोज टाइप ऑफ प्रोटीन विच कंटेनिंग ओनली एमाइनो एसिड, जिसमें सिर्फ एमाइनो एसिड पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन। दिस इज द अकॉर्डिंग टू द केमिकल अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो हमारे पास सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें सिर्फ एमाइनो एसिड पाए जाते हैं। फिर सिंपल प्रोटीन के हमारे पास फिर दो किस्म के हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन है और स्क्लेरो प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन वो कौन से होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के मिसाल है अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन, सही है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। स्क्लेरल प्रोटीन में हमारे पास क्या है, एलेस्टीन है, केराटिन है, दीज आर व्हाट, दीज आर द स्क्लेरल प्रोटीन हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको स्क्लेरो प्रोटीन कहते हैं। स्क्लेरो प्रोटीन में केराटिन है और कौन कौन से हैं, एलास्टीन वगैरह, कोलेजिन है। दूसरी टाइप जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द केमिकल अरेंजमेंट वी हैव सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विच इज नोन एज कंजुगेटेड प्रोटीन और कम्प्लेक्स प्रोटीन। तो कंजुगेटेड, जैसे हमने लिपिड में पढ़ा था कम्प्लेक्स लिपिड, तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कम्प्लेक्स प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ एमाइनो एसिड के साथ साथ दूसरा क्लासिफिकेशन आज जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब है अदर देन प्रोटीन, अदर देन एमाइनो एसिड अरेंजमेंट आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लास ऑफ जेनरिक, जेनरिक के साथ फिर दूसरा लोग आ जाए, पोस्ट आयरन वाले बैठ जाए, तो पोस्ट आयरन वाले क्या है आप लोगों के लिए, ओरिजिनली आप लोग जेनरिक वालों की क्लास के साथ बैठे हुए हैं, तो दिस इज द प्रोटीन एंड द पोस्ट आयरन वाले क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। प्रोस्थेसिस एक्स्ट्रा फ्रॉम योर बॉडी वो है, मसनूई टांग जब हम लगाते हैं उसको भी हम प्रोस्थेसिस कहते हैं। लेकिन हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास कंजुगेटेड प्रोटीन में एमाइनो एसिड के साथ साथ अदर देन एमाइनो एसिड अरेंजमेंट में आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो जैसे हमारे पास कौन कौन से हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज के साथ अरेंजमेंट, प्रोटीन के साथ ग्लूकोज। लेपोप्रोटीन का मतलब प्रोटीन के साथ लिपिड आ जाए, लिपिड क्या है हमारे पास, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, लेपोप्रोटीन, और क्या है हमारे पास, हाँ और कुछ पता है आप लोगों को, न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन भी है, और हिस्टोन और प्रोटामीन, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कंजुगेटेड प्रोटीन। लेकिन तीसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास है जिसको हम क्या कहते हैं, डिराइव प्रोटीन कहते हैं। ये इसमें मौजूद नहीं है इसलिए मैं वर्बली बता रहा हूँ। डिराइव प्रोटीन आर दोज टाइप ऑफ प्रोटीन, हमारे पास डिराइव प्रोटीन वो प्रोटीन है जो क्या कर लेते हैं, विच इज फॉर्म फ्रॉम सिंपल प्रोटीन, जो सिंपल प्रोटीन से बनती है या कंजुगेटेड प्रोटीन से बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, डिराइव प्रोटीन कहते हैं। इस डिराइव प्रोटीन में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, इसके फिर दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन एंड प्राइमरी डिराइव प्रोटीन एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन। प्राइमरी डिराइव प्रोटीन में हमारे पास क्या है, मेटा प्रोटीन है। दूसरा क्या है, जबकि सेकेंडरी प्रोटीन के एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड जो है, दीज आर द पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है। फिर हमारे पास फिर ये बाद में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन जो है ग़िज़ाइयत के तौर पे हमारे पास, ग़िज़ाइयत के तौर पे हमारे पास प्रोटीन की भी कितनी क्लासिफिकेशन है, 3 क्लासिफिकेशन है। वन इज कंप्लीट प्रोटीन, one is complete protein, second one is incomplete protein, the third one is poor protein. What is complete protein? Complete protein are those type of protein which are containing, सही है, जिसमें सब which are containing all type of amino acid, जिसमें सब amino acid पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, complete protein. Incomplete protein are those type of amino acid in which there is absence of only one amino acid, इसको हम incomplete प्रोटीन कहते हैं। जबकि पुअर प्रोटीन आर दोज टाइप ऑफ प्रोटीन इन विच देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ मोर देन वन एमाइनो एसिड, एक से ज़्यादा एमाइनो एसिड की कमी आ जाए ग़िज़ाइयत के तौर पे, ऐसे एमाइनो एसिड भी है जिसको हम क्या कहते हैं, पुअर प्रोटीन कहते हैं। तो हमारे पास जैसे हमारे पास इनकम्प्लीट प्रोटीन की मिसाल है पल्सेस, दालें वगैरह, दाल भी एज अ टाइप ऑफ प्रोटीन है, सीरियल्स वगैरह है, सही है। जैसे पल्सेस में क्या होता है, म्यूथिनीन की कमी होती है,
म्यूथिनीन। जबकि हमारे पास दूसरा सेरेल्स वगैरह, गंदम वगैरह, उसमें क्या होता है डिफिशिएंसी इन लाइसिन, इसमें कमी होती है। 4 में क्या होता है लैक ऑफ मोर देन 1 एमाइनो एसिड है। जैसे हमारे पास क्या है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन। ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन आर द टाइप्स ऑफ व्हाट पुअर प्रोटीन। दीज आर द अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल भी पढ़ लिए, अकॉर्डिंग टू द केमिकल अरेंजमेंट हमने 3 सब क्लासिफिकेशन पढ़ी। अभी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्लाइड हम पढ़ते हैं प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी का मतलब हल फजीरी। हल फजीरी के तौर पे हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? अल्बुमिन विच इज सोलेबल इन वाटर, विच इज अल्बुमिन जो है हमारे पास हमारे जिस्म प्रोड्यूस करते हैं, विच इज सोलेबल इन वाटर। कौन प्रोड्यूस करता है अल्बुमिन ग्लोबुलिन? इट इज प्रोड्यूस बाय योर लिवर। साल्ट सोल्यूशन, इसमें क्या होते हैं कोगुलेटेड बाय हीट। कोगुलेटेड बाय हीट का मतलब ये जम जाता है। कोगुलेशन का मतलब क्या है? जम जाता है। यस, अगर हम इसको गरमाइश दें तो ये जमता है। हमारे पास एग्जाम्पल अल्बुमिन किस किस चीज़ में? एग में सीरम अल्बुमिन और लेक्टर अल्बुमिन इसमें पाए जाते हैं। हमारे पास ग्लोबुलिन जो है क्या है स्लाइटली सोलेबल इन वाटर, थोड़ा बहुत ये हलपजीर होती है। सोलेबल इन साल्ट सोल्यूशन, जब साल्ट सोल्यूशन में नमक वाली सोल्यूशन में ये हलपजीर हो सकती है। और ये कोगुलेशन जो है अगर इसको हम गर्म कर दे तो फिर क्या होता है जम जाता है। सीरम एंड वेजिटेबल ग्लोबुलिन, वेजिटेबल में पाए जाते हैं, और लेक्टोग्लोबुलिन, सही है। और हमारे पास फिर तीसरे टाइप से अल्बोनामाइड्स, अल्बुमिनाइड्स। वो क्या अनसोलेबल इन ऑल न्यूट्रल सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल सॉल्वेंट का मतलब जैसे पानी में गैर हलपजीर होती है, लेकिन ये क्या हो जाता है एन डाइल्यूटेड एसिड और अल्कली में क्या हो जाती हैं इनसोलेबल है। इसके कोगुलेशन होती है गरमाइश से नहीं होती है। जैसे केराटिन, सही है, आप नाखून को पानी में डालते हो तो क्या हो जाता है? हल होता है? नहीं होता है। और इसका जमता है पानी नहीं। और कोलाजिन जो है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। दूसरा है हेस्टोन। हेस्टोन कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे पास क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। हेस्टोन सोलेबल इन साल्ट सोल्यूशन एंड इनसोलेबल एंड वेरी डाइल्यूटेड। कौन सा है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाते हैं? एमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसोलेबल है, और इसका कोगुलेशन जो है बाय हीट जो है गरमाई से नहीं होती है। जो क्या है न्यूक्लियोहिस्टोन्स एंड थाइमस में पाए जाते हैं, थाइमस ग्लैंड में पाए जाते हैं। और ग्लोबुलिन ऑफ हेमोग्लोबिन में जो ग्लोबुलिन पाए जाते हैं उसको भी हिस्टोन कहते हैं, सही है। फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, हमारे पास दिस इज द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट कंपोजिशन। हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन इज द टाइप ऑफ व्हाट टाइप अकॉर्डिंग टू द केमिकल। हमने पढ़ा था कंजुगेटेड प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन इज द ओरिजिनल एंड ग्लूकोज इज द प्रोस्टेटिक ग्रुप, तो न्यूक्लियोप्रोटीन। इसी तरह फास्फेट इज द व्हाट? फास्फेट इज द प्रोस्टेटिक ग्रुप, प्रोटीन इज द प्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो इज द प्रोस्टेटिक ग्रुप, प्रोटीन इज द प्रोटीन। लेपोप्रोटीन, प्रोटीन इज द ओरिजिनल फॉर्म एंड लेपो इज द अदर देन प्रोटीन अरेंजमेंट है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कंजुगेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आर दोज टाइप ऑफ प्रोटीन इन विच देयर इज अरेंजमेंट और देयर इज अटैचमेंट ऑफ अदर देन प्रोटीन मॉलिक्यूल आल्सो। तो इसको हम क्या कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, सही है। प्रोस्टेटिक ग्रुप हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, प्रोस्टेटिक ग्रुप इसमें क्या है न्यूक्लिक एसिड है, जो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन इसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या है? जैसे हमने पढ़ा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट होती है। फास्फोप्रोटीन में फास्फेट है, जो हमारे पास क्या है मिल्क में पाए जाते हैं फास्फोप्रोटीन, सही है। और क्या है क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोफोर है, जो हमारे पास हेमोग्लोबिन, हेमोसिनिन और साइटोक्रोम में पाए जाते हैं। इसी तरह लेपोप्रोटीन जो है लिपिड में पाए जाते हैं, जैसे HDL, VLDL या पेब्रिन इन द ब्लड, HDL, VLDL जो हम कहते हैं। दूसरा है मेटालोप्रोटीन जो है मेटल्स में पाए जाते हैं, सही है। मेटालो जो है हमारे पास मेटल्स है, प्रोटीन एज द प्रोटीन। तो हमारे पास ये क्या है सेरोप्लाज्मिन जो है कंटेनिंग जिसमें क्या हो जाता है सेरोप्लाज्मिन में कॉपर पाया जाता है। कॉपर इज द व्हाट? कॉपर इज द मेटल्स है हमारे पास। इसी तरह साइड्रेरोफेलिन में क्या होता है कंटेनिंग फेरस। इसमें क्या होता है? इसमें क्या पाए जाते हैं? आयरन पाए जाते हैं।
हमने ये पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द शेप। शेप मीन शक्ल के लिहाज से हमारे पास दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फिब्रस। जो ग्लोबुलर प्रोटीन इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में हल पजीर होते हैं, बट दिस इज फिब्रस इज इनसोल्यूबल इन वाटर। द ग्लोबुलर प्रोटीन लेंथ इन वाइड रेशियो इज लेस देन 10, इसका रेशियो जो है वाइड जो है चौड़ाई लेस देन 10 होती है, जबकि इसकी क्या है चौड़ाई मोर देन 10 होती है। ग्लोबुलर जो है ग्लोबल बाल शेप होती है, ये क्या होते हैं फिब्रस कॉइल और स्ट्रेचेबल होती है, स्ट्रेचेबल। एग्जाम्पल क्या है, हेमोग्लोबिन है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, जबकि ये क्या है कोलेजिन, पेब्रिन और माइसिन जो स्ट्रेचेबल होते हैं। हमारे मसल स्ट्रेचेबल होती है या नहीं, क्योंकि ये क्या है इसमें फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हो, तो फाइब्रस टिश्यू जो है वो क्या होता है स्ट्रेचेबल होती है। स्ट्रेचेबिलिटी मीन खिंचाव, सही है। हमारे पास फिर हाउ डज लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड मेक अ प्रोटीन, हमारे पास ये हमने पढ़ा था कि किसी तरह अमाइनो एसिड मिल के क्या बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए क्या बनते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं। हमने 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे पेप्टाइड, कौन कौन से हैं, वो पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड बॉन्ड है, तीसरा है ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड है। बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन अमाइनो एसिड इज नोन एज पेप्टाइड। अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड पाए जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अमाइनो एसिड आर ज्वाइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज के जरिए पाए जाते हैं। व्हाट इज डाइपेप्टाइड बॉन्ड, दो अमाइनो एसिड के दरमियान व्हेन 2 अमाइनो एसिड आर ज्वाइंड टुगेदर, पेप्टाइड बॉन्ड जो है सिंगल अमाइनो एसिड की तरफ पड़ते हैं। व्हेन दूसरा है डाइपेप्टाइड बॉन्ड, क्या किसे कहते हैं when 2 amino acids are joined together by 1 peptide bond, the product is known as dipeptide. This is one amino acid, this is another amino acid. ये बोले कि दो अमाइनो एसिड वो ज्वाइन करें एक पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, इसको हम क्या कहते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज वन अमाइनो एसिड, दिस इज अनदर अमाइनो एसिड। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मिल जाए, कौन से बॉन्ड के जरिए पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड का मतलब दो मॉलिक्यूल इसने अरेंज की। फिर हमारे पास ट्राइपेप्टाइड, जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड, दिस इज वन, दिस इज वन अमाइनो एसिड, इसको हम क्या कहते हैं डाइपेप्टाइड कहते हैं, क्योंकि 2 अमाइनो एसिड, जब 3 अमाइनो एसिड मिल जाए तो फिर हम इसको क्या कहते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड। व्हेन 3 अमाइनो एसिड आर ज्वाइंड टुगेदर, प्रीवियस में क्या था when 2 amino acids are joined together by peptide bond, it is known as dipeptide. इसमें क्या when 3 amino acids are joined together by 2 peptide bond, the product is known as, sorry, when 3 amino acids are joined together by 2 peptide bond, the product is known as dipeptide। नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। जब 3 amino acid जो है मिल जाए, कैसे मिल जाए, 2 पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, बाय 3 पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस में 1 पेप्टाइड बॉन्ड था, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड ही कहते थे अमाइनो एसिड में। जब हमने डाइपेप्टाइड किया कि व्हेन 2 अमाइनो एसिड आर ज्वाइंड टुगेदर बाय 2 पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं डाइपेप्टाइड कहते हैं। व्हेन 2 अमाइनो एसिड आर ज्वाइंड टुगेदर बाय 2 पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। This is the another lecture we will discuss in another class, okay?